अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी। आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में हम आपको मुल्क और दुनिया की अहम तरीन खबरों, ताज़ा तरीन अपडेट्स, कारोबार, खेल, मौसम और दीगर अहम वाक़यात से आगाह करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। तेलंगाना पुलिस ने मसनवी जहानत पर मबनी जदीद डायल 112 इमरजेंसी सिस्टम किया मुतारिफ। पुलिस, फायर, एम्बुलेंस और दीगर हंगामी खदमात अब एक ही नंबर 112 के जरिए दस्तियाब। KTR की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद। प्रोफेसर जयशंकर और KCR का हवाला। तेलंगाना के मुफादात, पानी के मंसूबों और दिल्ली से ताल्लुकात पर हुकूमत को बनाया निशाना। गांधी भवन में TPCC दानिश्वरों के शोबे का रियासती इजलास मुनक्किद। तंजीमी इस्तेहकाम, अवामी राब्ता मुहिम और आइंदा लाहे अमल पर तबादला ख्याल। ऑटो ड्राइवर का इल्जाम, मुफ्त बस स्कीम से रोजगार शदीद मुतासिर। कांग्रेस हुकूमत पर नाराजगी का किया इजहार। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का किरण रिजिजू को दो टूक जवाब। मल्लिकार्जुन खड़गे का मौक़िफ़, कब, क्या और कैसे बोलना है ये मेरा हक है। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के DGP CV आनंद ने हैदराबाद के TGICCC में मसनवी जहानत पर मबनी जदीद डायल 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम का इफ्तिताह किया। अब शहरियों को मुख्तलिफ हेल्पलाइन नंबर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर हंगामी सूरत हाल में सिर्फ 112 पर कॉल करना काफ़ी होगा। AI सिस्टम कॉल को फौरी तौर पर तज्जिया और दीगर गुफ्तगू को तहरीर में तब्दील करता है। मुतल्लिका महकमा और कॉलर की लोकेशन की शनाख्त करता है, जिससे इमदादी टीमें तेज़ी से रवाना की जा सकती हैं। पहली बार भारत में तेलंगाना पुलिस ने AI से चलने वाले ड्रोन्स को भी इमरजेंसी रिस्पॉन्स का हिस्सा बनाया, जो हादसात, आग, कुदरती आफात, सर्च एंड रेस्क्यू और कानून व इंतज़ाम की सूरत हाल में फौरी फ़िज़ाई और निगरानी फराहम करेंगे। ये निज़ाम 24 घंटे फ़ाल रहेगा और रोज़ाना हज़ारों इमरजेंसी कॉल्स को मौसर अंदाज में संभालेगा। దాని ద్వారా కాల్ చేస్తే 112 మనకు డౌన్లోడ్ అవుతుంది, మనం వాళ్ళ లోకల్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం సార్. అట్లనే సీనియర్ సిట్తో లేకుండా కాల్ ఆటోమేటిక్గా డిస్పాచ్ చేసే విధానం కూడా మనం రెడీ చేస్తున్నాం సార్. దీంతోపాటు మనం యాప్, మనకు ఒక డిపెండెన్సీ ఉండేది TG కోఆప్ యాప్ కానీ ఇట్లా కాకుండా అట్లా సార్ లైవ్ కాల్ సార్. నమస్తే, డైల్ 100 తెలంగాణకు స్వాగతం. ఏ విధంగా సహాయపడగలము? నాగరాజు గారు చెప్పండి సార్. నమస్తే అండి మేడం గారండి. చెప్పండి సార్, ప్రాబ్లం ఏంటి? సార్ మేము పొలం వేసుకున్నాం మేడం. మా పొలం మీదకి ఒక 10-15 మంది ఆడవాళ్ళు వచ్చి యుద్ధం చేసుకుంటా, గొడవ చేసుకుంటా మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు మేడం, ఏడిపిస్తున్నారు మేడం, కొట్టడానికి వస్తున్నారు. ఓకే సార్. హలో, చెప్పండి మేడం గారండి. ఏ గ్రామం నుంచి మాట్లాడుతున్నారు సార్? అరసర్లపాడు, ఎంతూరు మండలం మేడం. ఇంకేమైనా గుర్తులుంటే చెప్తారా సార్? గ్రామంలో మండలం అరసర్లపాడు గ్రామం మేడం. ఓకే సార్, మేము తెలియజేస్తాము. భూమి గురించి గొడవ పడుతున్నారు మీతో కొంతమంది అని చెప్పేసి. మీకు వెంసూర్ పోలీస్ స్టేషన్ నుండి ఇప్పుడు ఫోన్ వస్తుంది సార్, మాట్లాడండి. ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మేడం గారు. ఓకే సార్, డైల్ 100 తెలంగాణ కాల్ చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. VIP బందోబస్తు కానీ లేకపోతే ఇంకా అదర్ ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూస్, దే మే నాట్ బి రెడీ ఫర్ టేకింగ్ దిస్ కాల్స్. అందుకని పోలీస్ స్టేషన్కి అడిగి ఏ వెహికల్ పంపాలని చెప్పి అడిగిన తర్వాత దానికి యాక్టివేట్ చేస్తారు. Complaints, ma'am. Now we are escalating that issue. We are increasing a priority and informing them again. Yeah. Sir, we'll take a live call, sir, with your permission. So call మొత్తం ఎంత అయిపోయిన తర్వాత we'll freeze the screen and we'll explain that. దేశంలోనే మొదటిసారిగా AI డ్రోన్లను ఫస్ట్ రెస్పాండర్గా ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ప్రారంభంలో ఈ అత్యాధునిక డ్రోన్ల ద్వారా మహిళల భద్రతకు సంబంధించిన సంఘటనలు, భారీ ప్రమాదాలు, అగ్ని ప్రమాదాలు, వరదలు, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు మరియు ట్రాఫిక్ జామ్ల వంటి సమస్యలను మానిటరింగ్ చేయడం జరుగుతుంది.
ఎమర్జెన్సీకి సంబంధించిన కాల్ రాగానే డ్రోన్కు మరియు సంబంధిత పెట్రోల్ కార్కు కాల్ అసైన్ చేయబడుతుంది. ట్రాఫిక్లో పెట్రోల్ కార్లు సంఘటన స్థలానికి చేరుకోవడానికి ముందే ఈ డ్రోన్లు అక్కడికి చేరుకుని లైవ్ విజువల్స్ మరియు రాత్రివేళల్లో థర్మల్ ఇమేజింగ్ను కమాండ్ సెంటర్కు పంపుతాయి. దీనివల్ల కంట్రోల్ రూమ్లోని అధికారులు అక్కడి పరిస్థితిని త్వరగా అంచనా వేసి అవసరమైన బలగాలను పంపి ప్రాణ నష్టాన్ని నివారిస్తారు. तेलंगाना में एक ऑटो ड्राइवर ने रियासती हुकूमत के मुफ्त बस स्कीम पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए दावा किया कि इस पॉलिसी से उनका रोजगार बुरी तरह मुतासर हुआ है। उनका कहना है कि ऑटो ना चलने की वजह से बच्चों की फीस कर्ज लेकर अदा करनी पड़ रही। उन्होंने बताया कि वो माजूर हैं और साबिक वज़ीर आला केसीआर की जानिब से मिलने वाली पेंशन की रकम से ऑटो खरीदा था। ऑटो ड्राइवर ने यह भी कहा कि उनके ख़ानदान ने गुज़िश्ता इंतखाबात में कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। ताहम ये उनके ज़ाती व सियासी बयानात और उन दावों पर तेलंगाना हुकूमत या कांग्रेस की जानिब से इस खबर के वक्त तक कोई बाज़ाब्ता रद्दमल सामने नहीं आया। ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వచ్చినాక మీ ఆటో డ్రైవర్ల పరిస్థితి ఏంది? ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఏమైందంటే ఫ్రీ బస్సు పెట్టినాడు. ఫ్రీ బస్సు పెట్టి ఒకడు 50 రూపాయల కిరా కూడా ఎక్కట్లేదు. ఎందుకంటే మొత్తం ఫ్రీ బస్ అని గంట సేపు వెయిట్ చేస్తున్నారు లేడీస్. ఆ లేడీసే ఆటోలు ఎక్కువ వెళ్ళేది. ఫ్రీ బస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఫ్రీ బస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఈ ఆటోల పరిస్థితి దారుణంగా అయిపోయింది. తర్వాత ఏంటంటే ఇప్పుడు మన తెలంగాణ డిస్టిక్ లో మన చాలా మంది స్టడీ చదువుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏం పని జాబ్ లేక ఇదే ఆటోలు నడుపుకుంటున్నారు. వాళ్ళని రకరకాలుగా మళ్ళీ ట్రాఫిక్ అంటే తెలంగాణ ఉద్యోగాలు దొరకక ఈ ఆటోలు నడిపిస్తున్నారు. ఈ ఆటోలు నడిపించే వాళ్ళకు కూడా ఏమంటే ఈ ఫ్రీ బస్సు పెట్టడం వల్ల వాళ్ళకి దాంట్లో ఆటో నడపక అది ఇబ్బందా? దాంట్లో మార్పు అన్నారు, రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. అరే నేను చెప్తున్నా కదా, నేను కూడా రేవంత్ రెడ్డి ఆయనది ఒంగూరు మండలము, నాది ఉప్పునుతల మండలం. డైరెక్ట్ చెప్తున్నా, ఏం మార్పు లేదు. కేసీఆర్ చేసింది మొత్తం అదే ఉంది. సిరిప్ ఈయన ఏంటంటే సీట్ లో కూర్చున్నాడు, ఈయనది సంపాదించుకుంటున్నాడు. బాయ్ ఆ మీడియాలో వేస్తే ఆయన నా మీద కేసు అని వేసుకొని ఏమని వేసుకొని నో ప్రాబ్లం. ఆయన నల్లమల్ల ముద్దు బిడ్డనే, నేను నల్లమల్ల ముద్దు బిడ్డనే. ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తే మారుతుంది. बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि इल्ज़ाम लगाया है कि तेलंगाना के मफादात को नज़रअंदाज किया जा रहा। उन्होंने कहा है कि प्रोफेसर जयशंकर जैसे रहनुमाओं के नज़रियात को फरामोश किया जा रहा, जबकि केसीआर को तेलंगाना तहरीक का सबसे पुरअज़्म रहनुमा करार दिया। और केटीआर ने यह भी दावा किया कि आंध्र प्रदेश हुकूमत तेलंगाना के साथ आबी मंसूबों को मनसूख करने की दरख्वास्त कर रही और रियासती हुकूमत इस पर मुयसर अंदाज में आवाज़ नहीं उठा रही। उन्होंने रेवंत रेड्डी के दिल्ली के मुतअद्दिद दौरों पर भी सवालात उठाए और कहा कि तेलंगाना को खुद मुख्तार सियासी शनाख्त के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ताहम इन बयानात पर रियासती हुकूमत की जानिब से इस खबर के वक्त तक कोई बाज़ाब्ता रद्दमल सामने नहीं आया। నిన్నగాక మన ముఖ్యమంత్రి అంటాడు తెలంగాణలో అంటే ఇద్దరే మేధావులట. ఒక ఆయనట జైపాల్ రెడ్డి అట, జీవితంలో అయినాడు జై తెలంగాణ అని జైపాల్ రెడ్డి మేధావట. ఇంకొక ఆయన కేశవరావు అట. ఇక గది పరిస్థితి ఇవ్వాలి. మరి జయశంకర్ ఎడవాయే, విద్యాసాగర్ రావు ఎడవాయే, ఎంతమంది ఉన్నారు మేధావులు? ఒకరికి ఇద్దరు కాదు కదా బుద్ధిజీవులు, ఎంతో మంది ఉన్నారు. పోనీ మా ఊళ్ళో పేర్లు చెప్పకపోతే అందుకు నీకు మనసు ఒప్పకపోదు. మరి కోదండరాంకి ఏమైంది? ఆయన నీతోనే ఉన్నాడు కదా, ఆయన పేరైనా చెప్పకపోతే ఇప్పుడు ఆయన చెప్పుకోవట్టే ఏం కావాలి ఇప్పుడు కోదండరామ్ గారు? ఇంకా వేరే వాళ్ళు సెల్ఫ్ స్టైల్డ్ ఇంటెలెక్చువల్స్ వాళ్ళేం కావాలి? అంటే ఇంత భావదారిద్ర్యం పనికిరాదు ముఖ్యమంత్రి గారు. తెలంగాణ వాళ్ళ గొప్పతనాన్ని కూడా గుర్తించడానికి, గౌరవించడానికి సంస్కారం నీకు లేకపోతే నువ్వెట్లా ముఖ్యమంత్రి అవుతావు తెలంగాణ సమాజానికి? तेलंगाना के वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्टर भंडारी श्रीनिवास रेड्डी के खानदान को रियासती हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। उन्होंने उनके अहल खाना से मुलाकात की। उन्होंने छोटे ठेकेदारों से अपील की कि वो मायूस ना हो और अपने मसाइल हुकूमत के सामने रखें। वजीर ने यकीन दिलाया कि ज़र-ए-अल्तवा बिलों और क्रेशर यूनिट्स और माइनिंग से मुतल्लिक़ मसाइल के हल के लिए इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इस सिलसिले में वजीर माइनिंग विवेक वेंकट स्वामी के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर मामला वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के सामने भी पेश किया जाएगा ताकि मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ मिल सके।
అందరినీ ఖర్చు పెట్టినప్పుడు కాంట్రాక్టర్లు కానీ సామాన్య ఎంతో మంది ఆయన యువకులకు ఉపాధి కల్పించి ఆయన క్రషర్లు ఉపాధి కల్పించడమే కాదు ప్రజాసేవను ముందున్న నాయకులు కాంట్రాక్టర్గా పోయిన గవర్నమెంట్ లో 5,30,00,000 బిల్లులు ఆగిపోవడమే కాకుండా మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఒక మైన్స్ సంబంధించిన డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఒక తెలివిలేని ఆర్డర్ ఇచ్చి ఆయనకు ఒక నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకవైపు ఏమో పెండింగ్ బిల్లులు, ఒక నోటీసు 5 కోట్ల రూపాయలు పెనాల్టీ ఉన్నట్టు 5,03,00,000 చిల్లర పెనాల్టీ ఉన్నట్టు దానికి 10 టైమ్స్ పెనాల్టీగా 54 కోట్లు కట్టాలని ఒక నోటీస్ ఇస్తే నోటీస్ ఇచ్చి ఆ క్రషర్ కు ఆయన ఉండే ఇల్లు కూడా క్రషర్ ప్రాంతంలో ఉంటుంది. కరెంటు కూడా డిస్కనెక్ట్ చేస్తే అవమానంతో భార్యని బయటికి ఊరికి పంపించి ఆత్మహత్య చేసుకున్న శ్రీనివాసరెడ్డి అనే వ్యక్తి. యాక్చువల్లీ ఆయన నాగరికర్ణం పోదామంటే వాళ్ళ వైఫ్ వాళ్ళ కొడుకు కూడా ఇక్కడికే వాళ్ళ సిస్టర్ ఇంటికి రావడం జరిగింది. వాళ్ళని పరామర్శించి మొన్ననే లాస్ట్ ఫ్రైడేనే వాళ్ళకి కావాల్సిన 5,31 కోట్ల రూపాయలు సిఆర్ కేంద్రం నిధులు దాన్ని రిలీజ్ చేపించి వాళ్ళ చెక్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. గడ్కరీ గారిని కూరగాయలు వెంటనే పాత బకాయిలను రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారి సహకారంతో ఆ పేమెంట్ చేస్తూ ఇంకా కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి వాళ్ళ మైన్స్ లో గతంలో సుశీల్ కుమార్ డైరెక్టర్ గా ఇప్పుడున్న డిప్యూటీ हैदराबाद के गांधी भवन में टीपीसीसी इंटेलेक्चुअल्स डिपार्टमेंट की रियासती एग्जीक्यूटिव मीटिंग रियासती चेयरमैन अनतोला श्याम मोहन की सदारत में मुनक्किद हुई। इजलास में टीपीसीसी सदर और एमएलसी महेश कुमार गौड़ बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए, जबकि ऑल इंडिया कांग्रेस इंटेलेक्चुअल सेल के चेयरमैन प्रवीण दाउल और नायब चेयरपर्सन पुष्पा लक्ष्मण, रियासती रहनुमाओं और दानिश्वरों के शोबे के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इजलास में पार्टी को तंजीमी तौर पर मजबूत बनाने, दानिश्वरों के शोबे की तोसी, आइंदा की हिकमत अमली, अवामी मसाइल पर कांग्रेस के मौक़िफ़ और हुकूमत की फलाही स्कीमों को मुयस्सर अंदाज में अवाम तक पहुँचाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में रियासत भर में दानिश्वरों की शमूलियत बढ़ाने के लिए सरगर्मियों को मज़ीद तेज़ करने का भी फैसला किया गया। राज्यसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू ने सख्त रद्दमल ज़ाहिर किया। किरण रिजिजू ने कहा कि कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ने किसी कायदे का हवाला नहीं दिया और वो चंद और चेयर को हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि सिर्फ दरख्वास्त कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि कांग्रेस के नए अरकान कुछ नहीं सीख पा रहे क्योंकि उनकी क़ियादत उन्हें मौका नहीं दे रही। ऐवान में दोनों रहनुमाओं के दरमियान इस लफ्ज़ी तबादले के दौरान कुछ देर के लिए गर्मा गर्म माहौल देखने को मिला। To speak, I quoted 2 rules. He has not quoted any rules. He stood up. Sir, you gave him time, and the leader of opposition spoke. As a person, he is a senior member. He is also a leader of opposition. No, but he has not quoted any rules. Let me ask him. You please wait. Please wait. I reiterate again. Rule 240. I had already quoted that time also. That while you had given him chance to speak every day, he kept on raising the same matter which he raised for 7 days. That is why the rule was specifically mentioned that a member cannot refer to the same matter which he has already spoken with the permission of the chair. Okay, whether he's the opposition member or ruling party, you cannot give direction to the chair. You can only make requests. You can demand. It is your right. But you cannot dictate the house and you cannot pass any direction to the chair. On the matter with regarding to the new member, I want to facilitate the new member. Pawan Khera is a new member. राज्यसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे और मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला देखने को मिला। ऐवान में खिताब के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि क्या अब मुझे रिजिजू से क़वायद सीखने होंगे, कब बोलना है, क्या बोलना है और कैसे बोलना है, ये मेरा हक़ है। उनके इस बयान पर ऐवान में कुछ देर के लिए गर्मा गर्म माहौल पैदा हो गया। ये तबसरा पार्लिमानी कार्रवाई के दौरान होने वाली बहस के तनाज़ुर में सामने आई।
पढ़ूंगा, अगर मेरा मैटर अगर नहीं पढ़ूंगा, क्या तुम DSO में पढ़ूं? अरे इट इज माय राइट व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, हाउ टू स्पीक. This is the rule book, and this rule book, what it says, you are insulting my member. And Pawan Khera, you took his name, and you are insulting him as if you are everything. And sir, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के बाइस मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो रही. मगरबी बंगाल के मगरबी मदनापुर ज़िले में शदीद बारिश से कौमी शहरा 60 पर पानी जमा हो गया, जिसके बाइस ट्रैफिक मुतासिर हुई. दूसरी जानिब केरला के अडोकी ज़िले के कांचियार और लबिकाडा इलाके में मुसलसल बारिश के दौरान एक तिजारती इमारत की छत अचानक मुनत्तिम हो गई. खुशकिस्मती से दुकानों में मौजूद अफराद बर वक्त बाहर निकल आए, जिसके बाइस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. हुकाम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई. ഒരു ഏകദേശം ഒരു 10-10:30 മണി സമയമായപ്പോഴേക്കും ഞാൻ സാധനം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ കാറ്റ് വീശി, അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ കെട്ടിടവും അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒന്നിച്ച് നിലപ്പത്തുമാണ് ചെയ്തത്. ധാരാളമായ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സാധനങ്ങളെല്ലാം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നാട്ടുകാരും വ്യാപാരികളും സുഹൃത്തുക്കളും ലോഡ് വർക്കേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടി ഇപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ അടുത്ത കടയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. പൂർണ്ണമായ നഷ്ടമാണ്. സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അടിയന്തരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നത്. समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट डिम्पल यादव ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि जब भी तकसीम की सियासत का मामला होता है वो फौरी सामने आ जाते हैं, लेकिन नौजवानों के साथ मुबैना नाइंसाफ़ी के मामले पर खामोश हैं. उन्होंने नौजवान ख्वातीन के साथ मुबैना बदसलूकी के वाक़यात पर भी सवालात उठाए. डिम्पल यादव ने अयोध्या मंदिर को एक ताजिर की जानिब से 11 करोड़ रुपए के अतिये का हवाला देते हुए खुफिया चंदों के बारे में भी इल्ज़ामात आयद किए. ताहम इन इल्ज़ामात पर मरकज़ी हुकूमत, बीजेपी या मुतल्लिक़ा फ़रीक़ीन की जानिब से अब तक कोई रद्दमल सामने नहीं आया. आपने देखा है ऐसी वीडियोस आई हैं जहाँ पे बेटियों को मॉलेस्ट किया जा रहा है, बैड टच किया जा रहा है. तो आखिर आफ्टर ऑल ये लोग कौन रिस्पॉन्सिबल थे और किसके कहने पे ये सब बातें हुई थी? तो सवाल तो इस बात का है, जहां हम चाह रहे हैं कि होम मिनिस्टर जी आएँ तो सदन में आ नहीं रहे हैं. जब आपको डिवीज़न की बात करनी होती है, लोगों के बारे में जब आपको डिवाइड करना होता है सोसाइटी को, तब तो आप आके बहुत तुष्टीकरण की बातें करते हैं आके सदन के अंदर आके. और अभी आप आ नहीं रहे हैं जब पूरा विपक्ष चाह रहा है, जब पूरा यूथ चाह रहा है, जब पूरे जेनजी चाह रहे हैं कि आफ्टर ऑल ये कौन जिम्मेदार है जो इतनी बर्बरता बरताई गई हमारे युवाओं के साथ. तो तब तो आप आ नहीं रहे हैं. अब इस तरह की बातें लाकर आप सोसाइटी को डिवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने मुद्दे हैं. राम से जुड़ा हुआ मुद्दा जहाँ आया है, जहाँ मंदिर में आपने चोरी कर दी, और ये चोरी जब से मंदिर शुरू हुआ है न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों ने चंदा दिया, चाहे भले ही 50 रुपए का दिया हो, चाहे भले ही करोड़ों रुपए का दिया हो. अभी मैं बनारस गई थी तो मुझे मालूम हुआ कि जो एक उद्योगपति थे उन्होंने 11 करोड़ रुपए का चंदा दिया राम टेम्पल में, वो भी एक इंसान ने. तो आप समझ सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड, इसकी विशालता कितनी है. न जाने कितने हजार करोड़ रुपए का चंदा. और कोलकाता में मुनक़िदा टेक्सटाइल एक्सपो से खिताब करते हुए मगरबी बंगाल के वज़ीर आला शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि सूरत से आने वाला खाम माल बंगाल के टेक्सटाइल सनत के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो रहा और इससे दोनों शहरों को यकसां फ़ायदा पहुंच रहा. उन्होंने कहा है कि मैं एक फ़ख्र करने वाला हिंदुस्तानी हूँ. शुवेंदु अधिकारी ने अपने खिताब में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी जिक्र करते हुए कहा है कि उनके किरदार की वजह से मगरबी बंगाल भारत का हिस्सा बना, वरना रियासत का अंजाम बांग्लादेश जैसा हो सकता था. ये बयान उनकी सियासी और तारीखी तशरीह की अक्कासी करता है. एक बड़ा काम है, इसमें आपका बिजनेस भी स्ट्रांग होगा, इसका साथ बहुत सारा लोग जुड़ा हुआ है. जैसे रॉ मटेरियल सूरत से आ रहा है,
वहाँ का जो रॉ मटेरियल जो करता है उनका भी फायदा होगा, वो भी देश के नागरिक। जो पहले मुख्यमंत्री थी उन्होंने तो सूरत का नाम सुनते ही बोल देता है वो तो बाहर ही है। वो तो ये देखिए देश है, सूरत का फायदा होगा इसमें। आई एम प्राउड इंडियन, मेरा गर्व करना चाहिए। कलकत्ता का फायदा होगा तो गुजरात का लोग को भी। ये तो हमारी देश है, इसलिए तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हम लोग को पाकिस्तान से बचाया और 1947 20 जून पश्चिम बंगाल का फॉर्मेशन कर दिया। नहीं तो हम लोग का हालत आज बांग्लादेश का जैसे हुआ है, वो हालत में हम लोग को गुजरना पड़ता था। इसलिए वहाँ का रॉ मटेरियल से लेकर यहाँ का जो आर्टिजन है, यहाँ जो कारीगर है, उसका साथ जो बहुत सारा लोग ट्रांसपोर्टेशन से लेकर एक चेन चलता है, पूरा बिजनेस चेन, सब पश्चिम बंगाल का लोग उसका फायदा मिलता है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी हुकूमत आवाम को वोट बैंक के तौर पर नहीं देखती, बल्कि हर शहरी की फलाह व बहबूद को तरजीह देती है। उन्होंने दावा किया कि रियासती हुकूमत ने बगैर किसी इम्तियाज़ के तमाम मुस्तहिक़ अफराद तक सरकारी फलाही स्कीमों के फ़वाइद पहुँचाए हैं। और योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हुकूमत का मकसद ज़ात, मजहब या सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर अवामी खिदमत और मसावी तरक्की को यकीनी बनाना है। क्योंकि हमारे लिए जनता केवल वोट बैंक नहीं है। बिना भेदभाव के भारत के लोकतंत्र के अंदर हर जनता को शासन की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए हमने जनार्दन के रूप में उसको सम्मान दिया है, उसकी पूजा की है। और यही कारण है कि चाहे वह बनटांगिया हो, चाहे वह मुसहर हो, चाहे वह कोल हो, चाहे वह बुक्सा हो, सहरिया हो, गौड़ हो, थारू हो, चेरो हो, इन सभी जातियों के उत्थान के लिए जो कार्य हो। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिल्ला जिले में मोइम्मर हैंडलूम बुनकरों ने हुकूमत से माहाना 5,000 रुपए पेंशन फराहम करने और बेहतर सरकारी ताउन का मुतालबा किया है। बुनकरों का कहना है कि उम्र रसीद की और बढ़ते मौशी मसाइल के बाइस उनके लिए रोजगार जारी रखना मुश्किल हो गया है। उन्होंने हुकूमत से फलाही स्कीमों को मज़ीद मुयस्सर बनाने, हैंडलूम सनत को तहफ़्फ़ुज़ देने और बुजुर्ग बुनकरों के लिए ख़ुसूसी इमदादी इक़दाम करने की अपील की। ఇప్పటి వరకు ఇక గేదె బతుకు గిట్టనే ఉన్నది. ఇక పింఛన్ అవే 2,000 పింఛన్ ఇస్తాను చేనేత కార్మికుల కింద అని. ఇక తర్వాత ట్రిప్ పైసలు కట్టినాం కానీ అవి అయితే పైసలు పడతలేవు. ఈ నెలకు 15,000 పడతాయని అవి కూడా పడతలేవు. ఇక 28 రూపాయల కూలి ఇస్తాను. ఆ కూలితోటి ఏం సరిపోతలేదు, ఏం చిల్లరకు అయితే లేవు. మాకు నెలకు 3,000 రూపాయల మందులే అవుతున్నాయి. బీపీ అంటే, షుగర్ అంటే అరొక విధానంగా గోళీలకే 3-4 వేలు వస్తున్నాయి. ఇక ఏం చేతగాని వాళ్ళం ఏం నేసి ముసలిళ్ళం అయినాం. మా అంటే 1 ఆక 2 ఆకలు నెత్తే మా అంటే 1,500 వస్తున్నాయి. ఆ 1,500 గోళీలకు సరిపోతలేదు, చిల్లరకు। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने मेटा की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट हटाए जाने पर मौज़रत के बाद रद्दमल देते हुए कहा कि ये कानून, आइन और पार्लियामेंट की फतह है। उन्होंने कहा कि जो भी इदारा भारत में कारोबार करना चाहता है उसे मुल्क के कवानीन के मुताबिक ही काम करना होगा। निशिकांत दुबे का ये बयान मेटा की मौज़रत के बाद सामने आया, जिस पर सियासी हल्क़ों में मुख्तलिफ रद्दमल देखने को मिल रहे हैं। देखिए, ये जो जीत है ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान की है, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट और अदाकारा कंगना रनावत ने मेटा की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के फेसबुक पोस्ट को आर्जी तौर पर हटाने पर मौज़रत के बाद रद्दमल देते हुए कहा कि हमें खुशी है कि उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की।
कनका और कंगना रनावत ने इस पेशरफ्त का खैर मकदम करते हुए कहा कि गलती का एतराफ़ एक मुस्बित कदम है। उनका ये बयान मेटा की जानिब से वजाहत और माजरत सामने आने के बाद सामने आया। जी नहीं, मैं भी सेम कमेटी को जो है वो बिलोंग करती हूँ। हम लोगों ने ही जो है निशिकांत जी जो हमारे चेयरमैन हैं उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया और माफ़ी मांगने के लिए कहा था। और उसके साथ ही हमने ये भी चिंता जताई थी कि एंटी नेशनल को जो जिस तरह से प्रोपोगेट किया जाता है और जिस तरह से उसको जो है वो बढ़ावा दिया जाता है उसके लिए भी चिंता जताई थी। तो हम लोग इस बात के बहुत खुश है कि उन्होंने अपनी गलतियां मानी है और आगे चलकर भी जो है जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को जिस तरह से खतरा होता जा रहा है इन आतंकी शक्तियों से, उससे भी हमें जो है राहत मिलने की ऐसी अपेक्षा हम करते हैं। केरला के इडुक्की जिले के एलपारा इलाके में 4th माइल के करीब एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया। इतलात के मुताबिक एक कार बेकाबू होकर करीबी बागात में जा गिरी, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। ആശ്രമത്തിൽ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ വരുവാണ് പിള്ളേർ, അന്നേരം തന്നെ മേളിൽ നിന്ന് ഒച്ച കേട്ട് അവർ നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ സൗണ്ട് കേട്ട് ഓടി വരുവാണ്. അന്നേരം എന്നോട് ഓടിയെന്ന് പറഞ്ഞു. വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവർ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുക 4 പേരും. ഞങ്ങളന്നേരം ഞങ്ങളെ മാക്സിമം ഞങ്ങൾ വലിച്ചവരെ കര കയറ്റുമായിരുന്നു. അതിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു വണ്ടി പോലും കൈയാടി നിർത്തുന്നില്ല. പോയി ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആരും വന്നിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരു കയറ്റാൻ ചെളിക്കാതെ കയറത്തില്ല, കാര്യം ഞാൻ പോയി. ലാസ്റ്റ് ഞാൻ അവരെ ഒരാൾ ശരിയായിട്ട് ഞാൻ ഈ പോലീസ് വണ്ടിയെ കയറ്റി ചിന്നാറ് ആംബുലൻസ് വന്നു. അപ്പോൾ അവരെന്നെ ഇങ്ങനെ മുറുകെ പിടിക്കുക. എന്തോ അവർക്കും സുബോധമൊന്നുമില്ല, സീരിയസ്. അവർക്കും വെള്ളം കുടിച്ചു നല്ലപോലെ. അവർക്കൊരു 10-40 വയസ്സ് കാണുമായിരുന്നു. ആ മരിച്ചവളുടെ വൈഫായിരിക്കും. പിന്നെ വേറെ ഒരു 5 വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചുണ്ട്. ആ കൊച്ചിനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല, വേറെ പുള്ളിക്കാരി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളൊക്കെ അവർ കണ്ടുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ കൂടി വളർന്ന വലിച്ചാൽ ഈ മേളിൽ ഈ ആശിക്കിൻ്റെ അവിടെ 2 ഭായിമാരും കൂടി ഇറങ്ങി വന്നായിരുന്നു. അവർ ഞങ്ങൾ 3 പേരാണ് വലിച്ച് കര കയറ്റുന്നത്. കയറ്റിയപ്പോൾ ആ പുള്ളിക്ക് വലിയ ശരിയാ. शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने इस सवाल पर कि राहुल गांधी झारखंड में इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों के खिलाफ तलबा के एहतजाज पर खामोश क्यों हैं, कहा कि वो इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। संजय रावत के मुताबिक झारखंड में एक आज़ाद अवामी तहरीक जारी है और इस मामले की जिम्मेदारी रियासती स्वर्ण हुकूमत में आयद होती है। उन्होंने मजीद कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो खुद भी झारखंड जाएंगे। ये बयान झारखंड में इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात के खिलाफ जारी तलबा के एहतजाज के तनाज़ुर में सामने आया। मुझे नहीं लगता है कि राहुल जी साइलेंट है। मैं ये कभी नहीं मानूंगा कि जनता के या बच्चों के या युवाओं के समस्या के ऊपर राहुल जी कभी साइलेंट रहे, मैं ये नहीं मानता हूँ। झारखंड में एक सरकार है हेमंत सोरेन जी से, वहाँ आंदोलन चल रहा है। सबसे पहली जिम्मेदारी वहाँ मुख्यमंत्री की है, हेमंत सोरेन जी की है। अगर बच्चे यहाँ आते हैं, अब वहाँ के बहुत से नेता JNG में आंदोलन में थे, मैंने वो नेहा पूरा को देखा है, वो वहाँ पहुँचे हैं और वो लोग जाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम लोग भी जाएंगे, लेकिन बच्चों की तैयारी चाहिए कि अगर हमको वहाँ आना है या नहीं आना है। वो एक इंडिपेंडेंट आंदोलन है। नाजरीन, आज के न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। उम्मीद है कि आप तक हर अहम खबर बर वक्त और मुस्तकिल अंदाज में पहुंचाने में हम कामयाब रहे। आप देख रहे थे आवाज़ टीवी और मैं हूं नेहा खान। इजाज़त दीजिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।